Good afternoon students, welcome in the class of science, and today we are going to discuss the next topic of our chapter number 8, and you know chapter number 8 is carbon and its compounds, and our today's topic is allotropes. Allotropes. Actually allotropes are two or more forms of an element. हम बात करेंगे अभी आगे कुछ स्पेसिफिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी टू या मोर देन टू फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। फॉर्म्स टू या मोर देन भले ही टू होंगी लेकिन एलिमेंट तो केवल एक ही है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कार्बन की, हम पढ़ेंगे भी आगे कार्बन के एलोट्रोप हमें पढ़ने को मिलेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। इवन आप जब हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे वहां पे आपको फॉस्फोरस के भी एलोट्रोप्स देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि किस तरह से एलोट्रोप्स को डिफाइन किया जाए। नाउ वी कैन से two or more forms of an element, two or more forms of an element which have same chemical properties but differ by physical properties। वापस सुनिएगा, two or more forms of an element which have same chemical properties but differ by physical properties, यानी chemical properties तो same होंगी। अब chemical properties same क्यों मानी जा रही है? Because they all have the same element। हमने कहा एलोट्रोप कार्बन के हैं, इट मींस दे ऑल हैव द कार्बन एटम। हमने कहा एलोट्रोप्स फास्फोरस के हैं, इट मींस दे ऑल हैव द फास्फोरस एटम। एटम सेम रहेगा और जब एटम सेम रहेगा तो डेफिनेटली वहां फिजिकल प्रॉपर्टीज में भले ही चेंज आ सकता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें वेरिएशन देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं डेफिनेशन, फिर से सुनिएगा। टू और मोर, two or more forms of an element, two or more forms of an element which have the same chemical properties, which have the same chemical properties but differ by physical properties। But differ by physical properties are known as allotropes, and this property is known as allotropism। This property is known as allotropism। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है allotropism। Now it is clear? I think it is clear। Listen again, यानी एक ही एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट के हमने एक से ज्यादा फॉर्म देखे हैं लेकिन उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, केवल केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी हमें देखने को मिलेगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब देखिए क्या मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। एक्चुअली यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज से डायरेक्टली मीन हम निकाल सकते हैं फिजिकल स्टेट को लेके। इट मींस दे मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैसेस इन द नेचर। प्लाज्मा और वो आइंस्टाइन कंडेंसेशन, कंडेंसेट हालांकि स्टेट होती हैं लेकिन वो जनरली काउंट नहीं की जाती हैं। मेनली हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को लेके ही बात करते हैं। ओके, ये बात होगी एलोट्रोप्स की। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, basically allotropes of carbon are of two types। First one crystalline allotropes, while second are known as non-crystalline allotropes। First one crystalline, while second are known as non-crystalline allotropes। First of all, I would like to tell you the meaning of these two terms which are in front of you। First one crystalline, you know in mathematics, geometry, shape or we can say geometry। If the geometry of an allotrope, if the geometry of an allotrope is definite or we can say fixed, अगर किसी एलिमेंट की ज्योमेट्री या हम कहें शेप डेफिनेट है, फिक्स है, तो उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। नाउ लिसन टू मी, those allotropes which have the definite shape or geometry are known as crystalline allotropes। For example, three crystalline allotropes are there in case of carbon atom। First one you know very well, diamond। Diamond is the first crystalline allotrope, while second is known as the graphite and last one is known as fullerene।
full ring. These three are known as the crystalline allotrope of water. Crystalline allotrope of water. Second one, non-crystalline allotropes. Non-crystalline allotropes are those allotropes which does not have the definite shape. Which does not have the definite shape. Which does not have the definite shape. यानी इनमें जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती है, उनको नाम देंगे नॉन क्रिस्टलाइन. एक्चुअली हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की जहां पे हमें केवल क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स की ही स्टडी करनी है. नाउ विल डिस्कस अबाउट ऑल द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स one by one in detail. First of all, we'll discuss about the first crystalline allotrope, which is, you can see, diamond. Now diamond, first crystalline allotrope of carbon. If we see the structure of diamond, then it looks like that. इस तरह की स्ट्रक्चर हमें नजर आती है डायमंड की, जहां एक जो कार्बन एटम है 4 अदर कार्बन एटम से सराउंडेड रहता है. ये जो हमने डॉट बनाई है, हर एक डॉट एक कार्बन एटम को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है. ईच डॉट इंडिकेट्स ए कार्बन एटम. अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको कुछ कार्बन एटम तो 3 कार्बन एटम से सराउंडेड नजर आएंगे, तो कुछ के पास केवल 2 ही हैं. जैसे आप यहाँ मान लीजिए कार्बन है, तो इस कार्बन एटम को आप चेक करें तो केवल 2 अदर कार्बन एटम से सराउंडेड ही आपको नजर आएगा, और जो कि सही है. अभी हमने इसको 4 से कनेक्ट नहीं किया है, 4 से कनेक्ट ये अब होगा. जहां जहां पे आपको 3 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, वहां पे आपको 4 से कनेक्ट करना होगा. तो एक सिंपल स्ट्रक्चर हमने बनाई है, हालांकि ज्यादा सिंपल तो नहीं. अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपको लग रही होगी, तो क्या कर दिया कबाड़ा. तो सिंपल ही कहेंगे, कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे. ये कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात इसको इस तरह समझ सकते हैं. देखिएगा, नाउ यू कैन सी इजीली. In case of diamond, in the structure of diamond, 1 carbon atom is surrounded by 4 other carbon atoms with the help of strong covalent bonds. Strong covalent bonds, you know very well. Single bond, double bond, triple bond are the part of covalent bond, and you know covalent bond is strong bond which is found in all the carbon atoms, or we can say all the organic compounds have the covalent bond. तो यहाँ पर भी covalent bond है जो strong nature का है, और covalent bond के स्ट्रॉन्ग नेचर होने की वजह से, कोवलेंट बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग नेचर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो डायमंड है वो हमारी नेचर का हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है. याद रखें आप, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. हार्डेस्ट है और साथ ही साथ नेचुरल भी, क्योंकि नेचर में अपने आप बनता है. कैसे बनेगा, जब कार्बन पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर डाला जाता है तो वो कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है. जनरली जो डायमंड है वो कोल की माइन से ही ऑब्टेन किए जाते हैं. एक और खास बात हम यहाँ पे करें, द डायमंड कंटेन्स कार्बन एटम्स ओनली. डायमंड कंटेन्स कार्बन एटम्स ओनली. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट, व्हेन वी बर्न द डायमंड, व्हेन वी बर्न द डायमंड देन ओनली CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड. जब डायमंड को बर्न किया जाता है तो इस केस में केवल और केवल CO2 नजर आती है. एंड यू नो बर्निंग टेक्स प्लेस इन द हेल्प ऑफ, वी कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ O2. तो जब डायमंड को O2 की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा केवल CO2 बने. इसका मतलब क्या हुआ, डायमंड में केवल और केवल कार्बन एटम ही प्रेजेंट है. हार्डेस्ट है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है. और आप देखें कार्बन की 4 वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, और फ्री वैलेंसी नहीं होने की वजह से डायमंड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. कोई फ्री वैलेंसी नहीं है, so we can say diamond is the poor conductor of electricity. Now uses, diamond is used in the making of jewelry items, you know very well. Diamond is also used in the cutting of glass and marble. It is also used in the formation of oil wells
by the cutting of rocks. This was the complete account of diamond. Later on we will discuss tomorrow. Thank you so much.